Thank you. Hi, this is Anshul. I'm lucky to be the director of this music video. और SK Music Works के साथ में मैंने काफ़ी सारा काम किया है पहले भी. It has been a long professional and personal relationship with Siddharth Kashyap. और ये particular जो song है, it is very different from what SK Music Works have done so far. It's a very peppy number and इसमें मतलब गाने में ही अपने आप में एक कहानी है which a lot of people, youngsters in today's time will identify with. It's about एक quote है जो हमने बहुत पहले मैंने पढ़ा था which I thought that is perfectly apt for this particular music video, जिससे इंस्पायर होकर इसकी स्टोरी मैंने डिवाइस करी. That quote goes like this: all we want is money and all we need is love. So in today's generation where everybody is running behind materialistic things, what exactly is essential for us to for a happy living? This is what the whole gist of life in the current day is about. And Siddharth has very beautifully brought this in this song about cravings for material things and how in the end of the video, as you will see, there is a difficult choice for a young girl whether she wants money or love, and what she picks. That you'll have to choose, that you'll have to see the video to see how the boy inspires her to make a decision. Yeah, I mean, it was fantastic and बहुत foot tapping song है, wonderfully produced musically, superb lyrics, एकदम ज़बान पे चढ़ जाते हैं ऐसे lyrics हैं इसके. So I think all of you will enjoy as much as we loved working on this. Right. And we see very interesting poster, the creators behind, and on the bike, and it's got a very lavish feel. Right. So प्रतीक के साथ में डॉल्चे गबाना के जस्ट पहले मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया था फॉर सिद्धार्थ हिमसेल्फ. वो वीडियो का नाम था दुआ करो, उस गाने का नाम था दुआ करो. एंड फॉर्चुनेटली इट हैज़ डन वेरी वेल ऑन यूट्यूब एंड अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स. सो प्रतीक के साथ ये मेरी सेकेंड कोलैबोरेशन है. एंड व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग ही एब्सोल्युटली लव्ड इट. शुरू में उनको थोड़ी सी झिझक थी क्योंकि इस तरह के गाने उन्होंने पहले नहीं किए. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सॉन्ग. ही विल ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग. बट थैंक्स टू हिम, मतलब ही पुट ऑल हिज ट्रस्ट इन मी एंड द प्रोड्यूसर्स and he was completely on board and he is very easy to work with. Pratik is very easy to work with, or he's completely a director's actor. So once he starts trusting you, then he completely gives his all. तो प्रतीक और बिस्वा की जो केमिस्ट्री आप इस वीडियो में देखेंगे, इट इज़ फैंटास्टिक. बिस्वा हमारी सिंगर भी है और उन्होंने इस गाने में फीचर भी किया है. तो for her it was something new to be to make a debut in a music video of this scale, but she did a phenomenal job. आपको वीडियो देख के कहीं से नहीं लगेगा कि दिस इज़ अ न्यू गर्ल. और प्रतीक और बिस्वा की केमिस्ट्री जिस तरह से दे कम टुगेदर एंड द फायर दैट दे हैव पुट अप lit up on the screen, it's fantastic and you will see the video right now and you will know what I mean. Interesting incident video बनाते हुए Actually there are a few. To begin with, मतलब ये पर्टिकुलर वीडियो वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर द एंटायर टीम क्योंकि हमें संडे मॉर्निंग को मुझे अचानक सिद्धार्थ का फ़ोन आता है कि कैन वी शूट ऑन वेंसडे with Pratik and Biswa. And usually you all might know that it takes a good amount of time for the pre-production and setting up an entire music video, and especially something of this scale. तो मतलब पहले तो हम लोगों को आई वॉज नॉट श्योर कि हम 3 दिन में ये सब चीज़ें कैसे कर पाएंगे. बट थैंक्स टू द एंटायर कास्ट एंड क्रू, द डांसर्स, everybody, the production support, we all came together and we pulled it off magically in 3 days and a 1-day shoot and a 3 days of pre-production. It was stunning. मतलब for me it was, I was waiting कि मैं final product देखूंगा तभी मैं believe कर पाऊंगा that we have pulled this off, and we are very happy with the final product. सेट के ऊपर भी because Pratik and Biswa did not have a lot of time earlier to interact with each other because it just happened in a jiffy. It was fantastic how they came together and created. They were complete strangers before this, and how they came together and created that chemistry which was much needed for this particular song. There were moments when they were in the video where they are put inside a bathtub with a lot of jewelry and perfumes and like you can see it here. Yeah.
So, a lot of jewelry and perfumes and shoes and clutches and bags, they're all put around them. And this was a very difficult shot to take because we were short of time, and secondly, both of them are wearing clothes with a lot of bling on it. So it's not comfortable to wear a lot of bling and then lie down in a bathtub with another person on top of you and then a lot of things on top of you. So it was very tricky, but thanks to Pratik and Biswa, they pulled it off fabulously. Thank you so much. Thank you. बच्चे ऐसे आगे बढ़ते हैं तो बीइंग अ मदर मुझे पता है कि कितनी खुशी होती है। वसंत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आई नो विश्वजीता है, लॉन्ग टाइम बैक आई मेट हर, और बहुत अच्छा गाती है वो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट विद विश्वजीता। आई एम श्योर शी विल रॉक। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम श्योर बहुत अच्छा चलेगा ये गाना, एंड टाइटल भी बहुत अच्छा है, डॉल्चे गबाना। ऑल द बेस्ट। वेल अगेन मैं सिद्धार्थ भाई को बधाई देना चाहूँगा दिल से, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन गाने करते हैं और खुशी भी है और एक एक्साइटमेंट इस बात का भी है कि जिस तरह से सिद्धार्थ भाई आर्टिस्ट को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से वो अपना गाना प्रेजेंट करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो अच्छा आर्टिस्ट को प्रेजेंट करते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर ईच एंड एवरी आर्टिस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़की है जिसने ये गाना गाया है, जितनी अच्छी कलाकार है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा उसको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उम्मीद यही करते हैं कि सिद्धार्थ भाई का ये जो गाना है ये और अच्छा करे, मार्केट में बढ़िया नाम करे। आपका अगर जाने की बात की जाए वेल इट्स अ फीमेल सॉन्ग, बट मुझे इसकी हार्ड लाइन तो याद नहीं है। एक हुक लाइन है, डॉल्ची गबाना वाला बैग दे दे फिर गर्लफ्रेंड वाला तू टैग ले, विच इज़ गुड। अच्छा, नाइसली रिटर्न, नाइसली। स्पेशली मैं इसके वीडियो के बारे में कहना चाहूँगा, अंशुल ने कमाल कर दिया और गाना तो सच में बहुत अच्छा है। देखिए एसके के साथ मेरा संबंध जो है वो भाई वाला है, दोस्त की तरह है, और हमने बहुत सारा काम किया है। बहुत सारे काम हमारे अभी रिसेंटली बाहर आए हैं। मेहरबा आपने सुना है, छम्मो आपने सुना है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो इंडिविजुअल हैं, बहुत ही सोलो टाइप के गाने, बहुत ही अच्छे लेवल पे हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रखे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे गाने जो हैं वो आपके पास हम दोनों भाइयों के मिक्स होकर आते हैं। एनी क्वेश्चंस एनीवन? है ऑडियो क्लियर? चलिए ओके। डॉल्ची गबाना जो है अनयूजुअल टाइटल है, मीन्स कुछ हम चीज़ें जो रोज़ देखते हैं उनके ऊपर बनता है। हाँ, गुची है, प्रेडा है, वैसे डॉल्ची गबाना है। और सबसे यूनिक फैक्टर ये लड़की है बिस्वा, जो उसमें फीचर्ड भी है और सिंगर भी है। और एसके म्यूज़िक वर्क्स में हमने कोशिश की है कि हम हर 15-20 दिन में आपको बुला रहे हैं बार बार। आई होप आप लोग बोर नहीं हो जाओ हमारी सेम शक्लें बार बार देख करके, पर इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करें, कुछ नया करें और डिफरेंट जॉनर को एक्सप्लोर करें। सो ये जो डॉल्ची गबाना है, ये सॉन्ग बहुत ही मॉडर्न पॉप जोन के अंदर में है और इसे अंशुल विजयवर्गीय ने डायरेक्ट किया है, कुमार जी ने लिखा है और गाना बिस्वा ने गाया है। ये खुद फीचर्ड भी हैं और फीचर्ड भी हैं हमारे एकदम हॉट हंक प्रतीक सहजपाल के साथ में। इन दोनों की केमिस्ट्री भी आप वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की। और खाली विजुअल्स वाला गाना नहीं है, एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट को, एक कहानी को बना करके हमने किया है, जो कि जब आप इसे हम रिवील करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट टू नो एंड इट वुड बी अ गुड कनेक्ट टू अभी जो यंगर जनरेशन है, जो मेरे उम्र के तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इसके उम्र के, प्रतीक के उम्र के जो लोग हैं, वो हमारी आज का यूथ है, उनके अंदर बहुत लोग होंगे जो इन दोनों से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
दैट इज़ देयर, बट फाइनली अगर कंपोज़र बनना है तो दैट इज़ माई जॉब कि हम कुछ, और प्लस फिल्म से ज़्यादा चैलेंजिंग है इंडिपेंडेंट स्पेस में, क्योंकि आपको अलग अलग जॉनर को एक्सप्लोर भी करना है और उसे वैसे प्रेजेंट करना है कि वो यूनिक लगे। तो जब भी आप हर बार नया करने जाते हैं तो देर आर उस जॉनर के बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं। हाँ चलिए, अगर गज़ल करने हैं तो गज़ल में ढेर सारी गज़लें, कवाली है तो कवाली में ढेर सारी गज़लें, पॉप है तो पॉप में बहुत सारे गाने। सो समहाउ आई ट्राई कि मैं अपने आप को भी एक्सप्लोर करूं और कोशिश करें कि एसके म्यूज़िक वर्क्स जो एक चैनल है वो सेम काइंड ऑफ कंटेंट रिपीट ना करें और कुछ ना कुछ नया करने की हम हर बार कोशिश करते हैं उसके। फाइनली देखिए, एक आइडिया सबसे पहले सीड होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं एक बीज होना चाहिए, उसके बाद में फिर हम उसको बाद में सारा ठीक बना लेते हैं। सो वो जो आइडिया होता है ना, वो आइडिया सीड होने में इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कि मेरे दिमाग में ही आएगा। वी वर्क एज ए टीम, तो हम कभी बातें करते, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया था, जाना है तो जा का आइडिया कुमार जी के साथ में हम ऐसे ही बातें कर रहे थे और बातों बातों में एक बात निकली, लाइन निकली, वो वहाँ से सीड होकर के आगे किया। तो जब ये वाला गाना भी करना था तो एक आइडिया हमारे दिमाग में था, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में था जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। फिर उसके इर्द गिर्द हमने गाने को डिज़ाइन करना शुरू किया और फिर ये उसमें एक टीम वर्क होता है। मैं कंपोज करता हूँ, फिर कुमार जी लिखते हैं, तो कहीं पर लिखने में हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, कहीं पर वो कंपोजिशन में सजेस्ट करते हैं। फिर हमारे जिन्होंने डायरेक्ट किया है गाना, अंशुल विजयवर्गीय, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो एक बात एसके म्यूज़िक वर्क्स में ये अलग है कि नॉर्मली होता है ये गाना बनाने वाली टीम अलग है, वीडियो बनाने वाली टीम अलग है, हम हमारी एक टीम के साथ काम करते हैं। तो फिर उनके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है तो कहीं पर वैसा होता है कि स्टोरी अगर कोई चीज़ जम रही है तो वो चीज़ भी हम म्यूज़िक में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ मल्टीपल इनपुट्स ऑफ मैनी क्रिएटिव पीपल, बट हाँ फाइनली बीइंग अ लीडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किन चीज़ों को हमें रखना है, किन चीज़ों को हमें निकालना है और एक आइडिया को एक्सप्लोर करना है। आजा अंशुल इज हियर सर। द आइडिया अबाउट इज़, अगर मैं ट्रूली बोलूँ कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ तो उसका ये रीज़न है कि मैनी पीपल फाइंड मी टू ओल्ड, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई और जो मैंने म्यूज़िक सीखा है प्यारे भाई से, उत्तम सिंह जी के यहाँ पर, तो मैंने देखा है कि हाउ दे यूज टू क्रिएट म्यूज़िक। तो वहाँ पर म्यूजिशियन सब लोग साथ में आते थे, सिटिंग रूम होता था, जैमिंग करते थे, तो वहाँ पे सबकी एनर्जी, सबके इनपुट होकर के देन वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग। तो वो एक प्रोसेस था, सिर्फ हमने उस प्रोसेस को आज के ज़माने में आज के साज के साथ में रिक्रिएट कर दिया है। मैंने वहाँ पर अगर 6 ढोलक वाले बैठते होंगे वो होंगे, तो हम जिस जॉनर का म्यूज़िक है वैसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में बैठते हैं, लेकिन फर्स्ट हम वहाँ से आइडिएशन शुरू करते हैं और उसके बाद में आगे उसको डेवलप करते हैं। Hi guys, I'm Biswa, the singer and the actress of Dolce Gabbana. And जिस दिन कुमार पाजी मुझे सिद्धार्थ सर के साथ मिलवाए थे, उस दिन से आज तक इस काइंड ऑफ अ फेरी टेल, आई एम अ सिंड्रेला एंड आई एम लिविंग माई फेरी टेल लाइफ। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लाइक एक जिसको कोई नहीं जानता था, उसको सर ने एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है। सर ने मेरे अंदर वो टैलेंट देखा है एंड गाना सुन के सर को इतना अच्छा लगा एंड सर ने मुझे ये
अपॉर्चुनिटी दिया है कि इतना अच्छा गाना दिया है, उसके साथ साथ कैमरा के सामने आने का मौका मिला है मुझे। और मुझे बहुत छोटे से ही कैमरा के सामने आना था, एंड जो सपना मेरा सच हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू SK Music Vlogs। I think like what rightly Siddharth said, there's a lot goes into making a song, right? From creating a song to visualizing what has to be done. And I think so we are supported, SK Music Works is supported with a great mind and great team behind. Like what he created, what she delivered on screen, and what he created the whole concept, the vision in his head. I mean, you all will see today and it's mind-blowing. I mean, I couldn't have asked anything far more than this. I would just say that after a very long association with SK Music Vlogs and Siddharth Kashyap in particular, मेरी उनके साथ पर्सनल और प्रोफेशनल एसोसिएशन भी रही है बहुत काफ़ी बड़ी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया और इतना ब्यूटीफुल गाना मुझे शूट करने के लिए दिया, बिकॉज एक म्यूजिशियन के लिए हिज सॉन्ग इज लाइक हिज बेबी। तो ही ट्रस्टेड मी टू ब्रिंग दैट विजन अलाइव ऑन द स्क्रीन एंड ही ट्रस्टेड मी विद द डेब्यू ऑफ बिस्वा एंड वी हैव प्रतीक ऑल्सो हियर। ओह माय गॉड यार, आप दोनों का तो मेंटल केमिस्ट्री भी मैच है सर। ये माय गॉड, ऐसा आपने कॉम्बिनेशन बनाया है इस गाने में। How quickly we moved 3 days from Sunday to Wednesday from decision to the execution of the video. वो देखिए, एक चीज़ हम SK म्यूज़िक वर्क्स में हो या मेरा कोई भी काम हो तो मैं करता हूँ, पहले खुद कन्विंस होना चाहिए कि हमें करना है या नहीं करना है। और जब एक बार हमारा वो कन्विक्शन सेट हो गया कि हमें करना है, फिर उसके बाद में फिर एक चीज़ दूसरी भी पक्की है कि देर बिल्कुल नहीं करना है। सो फटाफट बनाओ, रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। क्योंकि पहले वाले मेरे 10 साल के करियर में मैंने बना के रखे थे, मैंने खुद सुनना बंद कर दिया। थोड़ा शॉर्ट था, बट फॉर द वीडियो, गाने के लिए तो इतना शॉर्ट नहीं था, पर फॉर द वीडियो इट वाज वेरी शॉर्ट। एंड हेड्स ऑफ टू अंशुल एंड आई शुड से दोनों के लिए, बिस्वा भी, प्रतीक तो वैसे ही बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। और इन्होंने जितनी जल्दी उसके लुक्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, मतलब बहुत कम समय के अंदर में, बट और वही मज़ा आता है काम करने का कि जब आपके एक्टर्स हों, आपकी टीम हो, वो उस प्रोजेक्ट को मतलब अपना समझ के करते हैं। इट इज़ नॉट वर्क फॉर हायर कि हमने बोला है हमें करना है। जब उस गाने को ओन करते हैं तो उससे बेटर फीलिंग, मतलब मुझे लगता है मेरे गाने की आधी सक्सेस पहले वहाँ पर होती है, और उसके बाद में फिर जब लोग उसे पसंद करते हैं तो आधी सक्सेस वहाँ होती सो आई वुड से दैट बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट था ये। एंड जैसे सर ने बोला कि समय हमारे पास बहुत कम था, शूट करने के लिए समय बहुत कम था, और उसमें भी अंशुल सर ने पूरा जी जान लगा दी, जैसे कि हमेशा वो लगाते हैं। और पूरा शूट एकदम ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में शूट हुआ, कम समय में भी समय लेके शूट किया है, सब्र से शूट किया है, और एकदम
यू नो टॉप क्लास चीज़ निकाल के दी है। आउटपुट जो है, जो आउटकम है, इट इज़ अमेजिंग। एंड सर ना ऐसा एक्सपीरियंस है कि मेरे हर जगह पे फोटोज़ लगी हुई हैं, सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। कल हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि अपने आप को एक सिल्वर स्क्रीन पे देखना, एक Right. So कैसा फील हो रहा है? Obviously हम गाना भी अंदर देखेंगे, but you know the whole feel and you know like you know the feel good factor. What do you have? यार ऑनेस्टली आज तक मैं अपनी मम्मी को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को सिर्फ मूवी दिखाने लाया हूँ यहाँ पे, और उस मूवी में जैसे कोई भी एक्टर होते हैं, लाइक गुड मूवीज़ विद एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी है, बट आज मैं अपनी मम्मी को अपना गाना दिखाने के लिए लाया हूँ यहाँ पे, अपनी फैमिली को। एंड मेरे बैनर्स लगे हुए हैं, थैंक्स टू सिद्धार्थ सर, थैंक्स टू द एंटायर टीम, एंड आई थिंक it's a great feeling, and I just wish that all of us just succeed more and more in life. All of us, all the people in this hall, cinema hall, and everyone in the world, they just go further and further in life, और मेहनत करते रहें, और तरक्की करते रहें, और बस आगे बढ़ते रहें। गाना का जो टाइटल है डॉल्चे गबाना बहुत अनयूजुअल और यूनिक है, वर्ड और मेमोरेबल, और एक इस तरीके का लाइफस्टाइल स्टाइलाइज्ड गाना दिखने में और सुनने में, और मेलोडी एंड द होल फील टू इट, होल वाइब टू इट। व्हाट डू यू हैव टू से about? सो द सॉन्ग इज़ अमेजिंग, एंड आई थिंक जो म्यूज़िक है वो बहुत ही अमेजिंग है। मैंने एक बात बोली है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो ऑडियंस को जिससे हम टारगेट कर सकते हैं कि यार यही गाना है तो यही टाइप के गाने पसंद आएंगे लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ हो जिससे मैं एक सेट ऑफ ऑडियंस को ग्रैब हमेशा करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर दिल से काम करोगे, उसका रिजल्ट जो मर्जी हो, एटलीस्ट आपको सेटिस्फैक्शन है कि आपने दिल से काम किया है, उसके आगे रिजल्ट जो मर्जी हो वो देने वाला ऊपर वाला है। आपको हमेशा पब्लिक से बहुत प्यार मिला है, इस गाने से क्या उम्मीद है? प्यार, बहुत सारा प्यार, एंड मिल भी रहा है अभी से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल इस गाने से। उम्मीद के लिए कभी काम नहीं करता, उम्मीद रख के कभी कोई काम नहीं करता मैं। आई थिंक उम्मीद जो है ना, जैसे कि बोलते हैं एक्सपेक्टेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट। सो नो एक्सपेक्टेशन, आई जस्ट बिलीव इन वर्किंग हार्ड। ज़िंदगी में मेहनत अपनी कर लो, उसके बाद जो भी फल होगा उसकी चिंता मत करो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं फल मिल ही जाएगा। जिसका आप यहाँ पर है, पूरी टीम है, गाना सुनना बहुत है, एंड आई थिंक टीम के नाम से Yeah, please join with me, sir. एक मिनट, भास्कर भैया इधर आ। चलो sing everyone. सर गाएंगे यार, सर गाएंगे हमारे। आप एक्ट करो। मैं क्या एक्ट करूँ? कह रही है आप एक्ट करो, यहाँ पे क्या एक्ट करूँ मैं इतने में? हाथ मेरा थाम ले पर मान ले पहले शर्त मेरी, क्या बात है? हाथ मेरा सच कर दे, हो जाऊंगी फिर मैं तेरी, इश्क में क्यों खर्चे से डरे, कभी यार तू चेक न करे, मैसेज भेजे, मुझे मैसेज भेजे, डॉल्चे गबाना वाला बैग दे दे, मुझे डॉल्चे गबाना वाला बैग दे दे। वो बैग दे रहे हैं भाई, लाओ बैग, लाओ भाई, बैग उठा लिया भाई ने, बैग उठा लिया भाई ने। Oh my God! बैटरी चेंज कर रहे हैं वो भाई, फंस जाते अभी, डॉल्चे का वाला पार्ट 2 में आ जाते। बैटरी चेंज कर दी है तुमने मेरे साथ। गाने की बात करें तो आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट था या फेवरेट मेमोरी? सेट पे आने से लेके सेट से जाने तक का सारा मोमेंट मेरा फेवरेट था, क्योंकि मुझे लगता है कैमरा के सामने मैं जब होता हूँ वो हर एक पल मेरे को बहुत मज़ा आता है उसमें, और मैं हर एक पल बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में यही सपना देखा है कि कैमरा के आगे रहना है, और जब कैमरा के आगे मैं होता हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यही मोमेंट फेवरेट है वो दूसरा नहीं है, सब एवरी सिंगल मोमेंट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई जस्ट लिव द बेस्ट लाइफ, इट्स द बेस्ट। नहीं, मैंने मुझे हमेशा से लगता था कि हम क्या छोटे छोटे फ़ोन में, मोबाइल स्क्रीन में और इधर उस गाने को देखते थे, तो मुझे हमेशा लगता था इतनी मेहनत मेरी टीम कर रही है, सब लोग मिल कर के इतनी मेहनत करते हैं, हम 4K पे शूट कर रहे हैं, बड़े बड़े कैमरा लेकर के आ रहे हैं, हम एडिट कर रहे हैं, हम कलर ग्रेडिंग, तो सब काम हम फिल्म जैसा कर रहे हैं, और उसके बाद में उसको कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे छोटे में, तो वो इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है। सो वी थॉट कि क्यों ना अब हम गाने को जब भी कर रहे हैं तो मीडिया के साथ जब प्रीव्यू कर रहे हैं तो मीडिया भी देखे, सो दे विल नो अबाउट द स्केल ऑफ द सॉन्ग वी एग्जीक्यूटेड, और हम भी, हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो दूसरे सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं,
सो बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट मोमेंट जब आप उतने बड़े स्क्रीन के ऊपर में उसको वो मेहनत जो की हुई है वो सामने दिखती है। और इसीलिए स्पेशली सिंस हमने लास्ट 2-3 गानों के बाद में वी डिसाइडेड हम उसका डॉल्बी एटमॉस मिक्स कर रहे हैं एंड दैट्स द रीज़न के नॉर्मली नहीं तो सॉन्ग्स के लिए स्टीरियो मिक्सेस करते हैं। सो आई थिंक वी वुड बी द फर्स्ट वन जो डॉल्बी एटमॉस में, और एप्पल म्यूज़िक के ऊपर ऑल आर सॉन्ग्स आर डॉल्बी एटमॉस मिक्स सॉन्ग्स। सो कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजिकली भी हम जितना अपनी रेंज में है उतना ऐड रह सकें और उसके साथ में चल सकें। आई थिंक सर ने ट्रेंड बदल दिया है हमारी इंडस्ट्री का काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी तक सिर्फ फिल्में लगती थी 70 mm पे, अभी गाने भी लगने लगे हैं। जो सपने देख रहे हैं लोग, उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनको एक और थोड़ा वाइडर होराइजन मिल गया है। एंड आई थिंक ही सेट अ ट्रेंड एंड इट्स अ ग्रेट 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 थिंग। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो मेरे लिए भी सरप्राइज है। वो मेरे लिए भी सरप्राइज होने वाला है भाई। क्या होने वाला है? Hey, how you look so pretty. Mubarak, Mubarak, so do you. Thank you so much. Hello, director साहब, कैसे हैं? Thank you for coming, sir. आइए, यहाँ देख के बोलना है, वहाँ देख के बोलना है। हाँ, तू तो वही बोलेगा ना कि यहाँ देख के बोलना है। सेंटर है, ये सेंटर ही है, इससे ज़्यादा क्या सेंटर। इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है? इस माहौल में जहाँ पे मनोरंजन की जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पे ऐसे उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उस माहौल में एक उभरते हुए कलाकार का आना, एक म्यूज़िक कंपनी का बनाना, साथ में म्यूज़िक बनाना, मेरे हिसाब से ये एक फ़नकार ही कर सकता है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है वो पैसे बचाने की नहीं है, पैसे बनाने की है। तो यहाँ पे वही आता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है और जिसके अंदर एक जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, जो मैंने कश्यप जी में देखा है। और मैं ज़रूरी तौर पे ये दुआ करता हूँ और ये मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ के आने वाले दिनों में एसके म्यूज़िक हर जगह सुनाई दे। सिर्फ उनका ही म्यूज़िक नहीं, क्योंकि वो अलग लोगों को चांस भी देते हैं, सिंगर्स को भी चांस देते हैं। तो ये जो ठंडा है एसके म्यूज़िक का, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि लहराएगा बहुत ऊपर। अब पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं, क्योंकि इतना शोर है, मगर मैं सोच रहा हूँ ये माइक्स काफ़ी तगड़े होंगे। तो ये है, कहाँ जाऊँ? सिद्धार्थ सर। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। बोलना यार, साइन लैंग्वेज में बोल। नहीं, अभी हमने जब ये लेबल शुरू किया, एक बुटीक रिकॉर्ड लेबल से शुरू किया। सो आई एम द कंपोज़र, क्योंकि मुझे अपने गाने शोकेस करने थे, जिसका एक हमने लाइन अप किया हुआ है। मे बी हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं, हम हमारा गोल्ड यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन क्रॉस करते हैं, एक लेवल के ऊपर में आते हैं जहाँ पे हमें भी फील हो कि हम किसी का अगर बाहर से हम कोई चीज़ अच्छी लगी है और उसको हमने लेकर के रिलीज़ किया है, तो हम जब उस स्केल पे जस्टिफाई कर पाएंगे, देन वी विल मेक आवर लेवल ओपन एंड डू दैट।
उसका मैं कुछ उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि ये प्रोसेस है इंडस्ट्री के अंदर, एक चलन बना हुआ है। बट हम हमारी बात कर सकते हैं, हम एसके म्यूज़िक वर्क्स में हमारे यहाँ तो हम आर्टिस्ट से स्क्रैच भी गवाते हैं ना, तो उसका रेट पहले फिक्स करते बाद में स्क्रैच करवाते हैं। हम बुला बुला के पैसे बुला के पैसे देंगे। सेम थिंग लाइक व्हाट वेरी राइटली सेड, वी कांट स्पीक कि बाकी कंपनीज कैसे इसको फंक्शन करती, बट लाइक हम लोग का एक फिलॉसफी, चाहे कोई स्क्रैच के लिए भी आए, चाहे वो जैम सेशन के लिए भी आए, बट वी रिस्पेक्ट ईच आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन वर्किंग हार्ड एंड गिविंग अस टाइम, एंड वी वैल्यू टाइम ऑफ पीपल, so we make sure that everybody gets paid in time and sometimes before time. So we like to follow this philosophy, at least in our company. So we have a jam session rehearsal hall which we started for our property called Perfect Amalgamation, but it was done so soulfully and